Hello my dear students, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. Today we are going to revise the chapter that is fluid. Right, तो fluid में हमने जो कुछ भी पढ़ा है Archimedes principle, Buoyant forces, buoyancy, law of flotation, we are going to revise that today itself, right? And this is our fifth chapter, right? सो देखिए ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. वैसे तो हर चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट दिस चैप्टर ऑल्सो बहुत अच्छा वेटेज रखता है ये फाइनल एग्जामिनेशन. इधर तुम स्कूल एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, या फिर तुम लोग फाइनल ओलंपियाड एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो. सो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ द एग्जामिनेशन. इधर इवन यू आर just watching these lectures for your knowledge, that is also good, right? So make sure that you totally make use of these lectures, study from these lectures, and make sure you update your knowledge, right? You all know that we deal with the NTSC, NSCJS, PRMO along with the school examinations, right? And that is the most important thing also, because we should be learning more and more so that we can excel in the future और इन दी फ्यूचर थिंग्स, बिकॉज यू आर इन नाइन्थ और हो सकता है कि आप 11th-12th में जेई या फिर नीट क्रैक करना चाहें. तो अगर आप ऐसा करना चाहेंगे तो ये लेक्चर्स विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू, right? So you should definitely watch these video lectures, and you need to share them too, right? If you want DPP and study material, you can access them from our Telegram channel. So what you need to do, you need to write this TTB 009 in the search box of the Telegram app. जब आप लिखेंगे TTB 009 तो ड्रॉप डाउन में हमारा चैनल अपीयर हो जाएगा. यू कैन ज्वाइन दैट चैनल, यू कैन एक्सेस ऑल द DPPs and study material along with the notification of the video classes. Alright. Now see, this is the team which is going to help you a lot, because we as a team are making sure that we do provide you the quality lectures you deserve, and definitely many students are not able to afford the high quality classes, and that is why we have made sure that we are providing these lectures free for everyone. You can watch these video lectures free of cost. So you should make sure that you do get benefit from these. Also you need to share these video lectures to everybody, so that many of the students who are unable to afford, they can watch these video lectures and crack their examination they wanna crack. Alright, so you need to make sure that you share it with everybody. Alright, in accordance to the video classes, these are definitely free. In accordance to that, we have also made some packages for you all. So if you are interested in like making up the whole, you can say whole journey throughout the year, you can join us, right? For that you need to go on the website www.talkingtextbooks.in. So if you go on that website, you are going to get two type of packages over there, the full and the test series one, right? The full package includes all the necessary things a student needs to crack an examination, and the test series include all the testing things, right? तो basically देखिए full जो package है उसके अंदर आपको सब कुछ मिलने वाला है. जैसे comprehensive study material first step है, because आपके पास एक study material होना चाहिए जो कि बहुत you can say comprehensive हो, organized हो और to the point हो. That is the most important thing. So comprehensive study material first thing हो गया. Next आप देख सकते हैं recorded and live classes, ये आपको मिल ही रहे हैं, right? Homework submission feature is one of the features जहाँ पे आपको homework करना होगा, and you are going to submit that to us, right? Bi-weekly quizzes जो हैं like you are going to attempt 2 quizzes every week. So basically you are going to watch the lectures, you are going to take a quiz, then you are going to watch the lecture, take a quiz. That would be that for you, so that you can get the knowledge ahead, right? Periodic test papers is the most important thing, because periodic test papers will let you know कि जो final examination में आपका जो pattern आने वाला है वो किस तरीके का आने वाला है, या किस तरीके के pattern पे questions पूछे जाते हैं, the level of the questions, the number of the questions in a given time you are going to attempt. तो इससे आपको पूरा सब कुछ पता चल जाता है periodic test papers से. So basically ये कुछ minimum चीज़ें हैं जो सभी को पता होना चाहिए, सभी के पास होने चाहिए, right? And that is what we have prepared for you. If you want to join the test series, then you can join that. Also, you are going to get the periodic test papers, recorded and live classes, bi-weekly quizzes. You are going to get 3 things in the test series, right? If you are interested in buying them, you can use my code CYLIVE to get a 30% discount. And if you are like want to know more, then you can call us on the number 919549041111. So call us on that number, and you will be resolving like all the things, all the queries of yours will be resolving over there. So make sure you do that, right? So let's get started. Now lecture 1, thrust and pressure, we have studied that.
alright, but before that let's promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on a daily basis, right? So what you need to do is आपको अभी अपनी कॉपीज खोलनी है और आपने जो भी नोट्स बनाए हैं उसमें कुछ भी अगर छूट गया हो तो उसे कंप्लीट करना है, उनको प्रॉपर बना लेना है, ठीक है? दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. ऑल्सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप जो रिवीजन अभी करेंगे मेरे साथ साथ तो वो आपको अपनी नोटबुक से करना है, ठीक है? तो आप अपनी नोटबुक से उसको रिवाइज करते चलेंगे, सारी जो चीज़ें छूट गई उनको नोट करते चलेंगे. दिस इज द टाइम जहाँ पे आप रिवाइज भी कर रहे हैं और अपने नोट्स को प्रॉपर भी कर रहे हैं, ठीक है? दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग ऑल्सो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हम लोगों ने फ्लूइड से स्टार्ट किया था एंड आई टोल्ड यू कि जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है. तो एक ऐसा सब्सटेंस जो कि क्या करता है, फ्लो होता है, ठीक है? That substance is named as the fluid. It can be gases, it can be liquid. So basically liquid and gases का combination is known as the fluid, ठीक है? So it is a substance that flows under the action of an applied force and does not have a shape of its own. Neither air has nor the liquid, right? So basically we include gases and liquids in that fluid, and when we talk about fluid we are talking about both. राइट, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर स्टोर्ड. आप किसी भी कंटेनर में आप उनको रखिए तो उनका शेप वही हो जाता है जो कंटेनर का शेप है. सो बेसिकली दे डू नॉट हैव शेप, दे डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक वॉल्यूम, और यू कैन से उनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, उनका कोई साइज नहीं होता है, राइट? दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड इट कैन बी टेकन एज अ प्रॉपर्टी ऑल्सो, ठीक है? अब देखिए, जब हम फ्लूइड को स्टडी करते हैं तो दो तरीके के होते हैं. लाइक जब फ्लूइड्स रेस्ट पे हों तो हम उनको स्टडी करें कि वो किस तरीके का प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, क्या क्या क्वांटिटीज़ को वो शो कर रहे हैं. और एक तरफ हम ये ले सकते हैं कि जब फ्लूइड मूव कर रहे हो तब वो क्या बिहेवियर शो कर रहे हैं, ठीक है? क्या प्रॉपर्टीज होल्ड अप कर रहे हैं. इनकी स्टडीज अलग अलग होती हैं, राइट? और जब कभी भी फ्लूइड रेस्ट पर होते हैं तो वी कॉल इट हाइड्रोस्टेटिक या फिर फ्लूइड स्टेटिक्स. जब कभी भी फ्लूइड मोशन में होते हैं एंड वी डू स्टडी देम देन वी कॉल इट हाइड्रोडायनामिक्स, ठीक है? सो बेसिकली द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन इज टर्म्ड एज हाइड्रोडायनामिक्स और स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट इज नोन एज हाइड्रोस्टेटिक्स, ठीक है? अब चलते हैं भाई थ्रस्ट पे. तो व्हाट इज दैट थ्रस्ट? Thrust is the force which is perpendicular to the surface on which it is a plane, ठीक है? तो बेसिकली अगर हम किसी सरफेस पे थ्रस्ट लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उस सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? द फोर्स अप्लाइड ऑन एनी सरफेस इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द सरफेस इज कॉल्ड thrust. It is always perpendicular to the surface on which the thrust is applying. Alright, just like this. So if this is the surface and we are applying forces like this, so it is perpendicular to the surface. So this is a thrust. Alright, that is the most important thing also. Thrust जो होता है वो perpendicular में लगता है, definite सी बात है. So basically आप जो weight measure कर रहे हो वो क्या है, thrust के बराबर है. You can say that. When a body is placed on a horizontal surface, it exerts a thrust equal to its weight on the surface. खुद का जितना weight है वो क्योंकि उतना ही वो एक तरीके से force apply कर रहा है and that is perpendicular to the surface. So basically they are applying thrust over there, right? A body resting on a horizontal surface will exert the same thrust irrespective of its orientation. Same thrust apply करेगा चाहे कोई भी उसका orientation हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, right? अब हम आगे देखते हैं. थ्रस्ट जब हम बात करते हैं गैसेस में और लिक्विड्स में, ऑलराइट, तो जब कभी भी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में या फिर किसी गैस में रख दिया जाता है तो चारों तरफ से फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस that liquid or that gas is applying thrust on that object. Alright, the force exerted by the liquid on any point of the object is perpendicular to the surface of the object, always perpendicular to the surface, right? So आप देख सकते हैं इस surface की अगर हम बात करें तो the force will be like this, perpendicular to the surface, right? तो जो कोई भी object जिसको हमने liquid में रख दिया है वो सभी डायरेक्शन से, मतलब इट विल बी लाइक फीलिंग द डायरेक्शन, जितने भी डायरेक्शन से उसके ऊपर फोर्स लग रहा है दैट विल बी परपेंडिकुलर, राइट? मतलब हर एक सरफेस के परपेंडिकुलर होगा लिक्विड के या फिर किसी भी गैस उसके थ्रू अप्लाइड किया गया फोर्स, राइट? द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द वॉल्स एट द ऑल द टाइम. तो बेसिकली वॉल्स पे जो भी फोर्स लग रहा है बाय द लिक्विड और बाय द एयर दैट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, सो दो दैट कैन बी टेकन एज थ्रस्ट, राइट? That is why the force exerted by a liquid or an object immersed in it on the walls of the container is called thrust. हम लोग जानबूझ के thrust क्यों बोलते हैं?
बिकॉज वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। अब हम ये बात जानते हैं कि भाई सरफेस के परपेंडिकुलर अगर आप फोर्स लगाएंगे तो दैट वुड बी थ्रस्ट, राइट। तो इसी वजह से जितना भी लिक्विड फोर्स लगा रही है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो उसके अंदर डूबा हुआ है उसे हम थ्रस्ट बोलते हैं, उस सभी फोर्सेस को हम थ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखिए यूनिट ऑफ थ्रस्ट क्या है, बिल्कुल फोर्स के बराबर है क्योंकि सेम ही तो है, बस डायरेक्शन फिक्स कर दिया गया है। इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। कॉमनली हम लोग वैसे तो थ्रस्ट को एक्सप्रेस करते हैं न्यूटन में, बट हम केजी वेट में भी कर सकते हैं, दैट इज नॉन एज द केजी वेट और ग्राम वेट। ग्राम वेट में अगर हम करेंगे दैट वुड बी द सीजीएस यूनिट, और किलोग्राम वेट में अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो दैट इज द एसआई यूनिट, ठीक है। 1 kg वेट जो होता है वो 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है, दैट इज द थिंग यू शुड नो। अब देखिए व्हाई डू वी स्टेट द प्रेशर एक्टिंग ऑन द फ्लूइड इंस्टीड ऑफ फोर्स। हम बार बार प्रेशर क्यों बोलते हैं, भाई पानी के अंदर जाने पे ज़्यादा प्रेशर लगता है, हम प्रेशर बार बार क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज एक बात तो हमें ये पता चल चुकी है कि पानी के अंदर या फिर किसी फ्लूइड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट अगर है तो उसके ऊपर हमेशा थ्रस्ट लग रहा है, ये बात हमें पता चल चुकी है। अब वो उसका कुछ सरफेस का एरिया भी होगा, तो thrust on an area gives you the pressure, that is why we always talk about the pressure। देखिए in case of solid the force can be applied in any direction with respect to the surface। हम surface से किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हैं, किसी एंगल पे फोर्स लगा सकते हैं, हर एक डायरेक्शन से फोर्स लगा सकते हैं, राइट। इट डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज परपेंडिकुलर, लेकिन ऐसा नहीं होता फ्लूइड्स के केस में, ठीक है। बट इन लिक्विड्स द फोर्स मस्ट बी अप्लाइड एट द राइट एंगल्स टू द लिक्विड सरफेस, राइट। तो यहाँ पे दिस इज बिकॉज फ्लूइड्स यानी कि लिक्विड्स और गैसेस एट रेस्ट कैन नॉट सस्टेन अ टेंजेंशियल फोर्स, वो टेंजेंशियल फोर्स को सस्टेन ही नहीं कर पाते। अगर आप किसी एंगल पे फोर्स लगा रहे हो वो उसको यू कैन से सस्टेन नहीं कर सकते, वो फोर्स लगेगा ही नहीं प्रॉपरली। एंड दैट इज वाई कोई भी फ्लूइड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखी है वी ऑलवेज कॉल thrust instead of force, and that is why thrust on an area gives you the pressure, right। therefore we state the pressure acting on the fluid instead of the force, right। देखिए प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स द परपेंडिकुलर, फोर्स शुड बी द परपेंडिकुलर वन, ठीक है। तो फोर्स परपेंडिकुलर है, ये एरिया, सो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज गोइंग टू गेट यू द प्रेशर। डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में देखिए एसआई यूनिट होती है पास्कल, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट होती है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 atm, ठीक है, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड दैट इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। 760 mm ऑफ Hg का मतलब क्या हुआ, मरकरी का, मतलब ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इसमें क्या होता है 760 मिलीमीटर, 760 मिलीमीटर ऑफ द मरकरी इज फिल्ड इनसाइड, राइट। उस पर जितना जो फोर्स लग रहा प्रेशर, राइट, उसमें जितना जो प्रेशर लग रहा है दैट इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये किसके इक्वल है 1 × 10⁵ पास्कल के बराबर है, ठीक है। 1 बार इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल, सो वी कैन ऑलमोस्ट से दैट 1 atm इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 बार, ठीक है। 1 torr इक्वल्स टू 1 mm ऑफ Hg, राइट, सो यू कैन डेफिनेटली से दैट। तो अब आप इनके बीच में भी रिलेशन पता कर सकते हैं, राइट। और ये जितने भी यूनिट्स हैं ये आपको हेल्प करेंगे in unit conversions in questions, right, so you should remember now। अब देखिए प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, व्हाई सो, प्रेशर स्केलर क्यों होता है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे अगर हम मेजर करेंगे प्रेशर को तो सभी डायरेक्शन से इट वुड बी सेम, so basically it does not depend on any direction, that is why it is a scalar quantity which does not need direction to be mentioned when we clarify that, alright। तो इसके स्पेसिफिकेशन के लिए, इसका एक्सप्लेनेशन के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, दैट इज व्हाई दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ऑलराइट। प्रेशर exerted by a liquid column, so let us understand and let's calculate the formula inside it। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने एक सिलेंड्रिकल वेसल ले लिया है, ठीक है, इसकी हाइट h है, दिस इज सिलेंड्रिकल वेसल, इसकी हाइट h है, एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ द बेस इज A है, तो हमने ऐसा ले लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने पूरा फुल लिक्विड फिल कर दिया है, पूरा फुल लिक्विड फिल कर, तो यहाँ देखिए द वेट ऑफ द लिक्विड विल एक्सर्ट अ डाउनवर्ड थ्रस्ट ऑन द बॉटम सरफेस ऑफ द वेसल, देयरफॉर प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एक्ट्स ऑन दैट सरफेस, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा लिक्विड का जो वेट होगा दैट वुड बी ऑन द सरफेस ऑफ द बेस, बेस की सरफेस पे सारा का सारा जो वेट है वो इस पे अप्लाई हो रहा है, दैट इज वाई जो प्रेशर होगा वो बेस पे लग रहा होगा, लिक्विड प्रेशर, राइट, वो तो अप्लाई करेगा ही करेगा। सो लेट्स डू दैट।
वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम कितना होगा उसका मास इनटू ग्रेविटी, डेफिनेट सी बात है W इक्वल्स टू mg, हम लोगों ने वेट कैलकुलेट किया हुआ है। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, सो वी आर गोइंग टू गेट rho equals to m upon ah. ah is the volume of this liquid filled inside the cylinder, ठीक है। तो इसके अंदर जितना भी फिल्ड किया हुआ है उसका जो लिक्विड है उसका डेंसिटी क्या है, रो, ठीक है। उसका हाइट है h, द एरिया इज क्रॉस सेक्शन a, ठीक है। बट यहाँ पे मेन बात क्या है, तुम्हें डेंसिटी पता है, तुम्हें एरिया पता है, तुम्हें हाइट पता है, सो यू कैन कैलकुलेट ऑल्सो द वॉल्यूम। सो वी हैव डन दैट, मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए, अब ये जो वेट है वो m इंटू जी है। m का फॉर्मूला, फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू दे रो ए एच, सो रो ए एच जी मिल गया हमें वेट। यही वेट थ्रस्ट के बराबर है, सो प्रेशर वुड बी हाउ मच, थ्रस्ट अपॉन एरिया। सो थ्रस्ट अपॉन एरिया से यू आर गोइंग टू गेट रो ए एच जी डिवाइडेड बाय ए, एरिया, बेस का एरिया। कैंसिल आउट होने के बाद यू आर गोइंग टू गेट दिस रो एच जी इक्वल्स टू प्रेशर। सो बेसिकली कोई भी लिक्विड अगर किसी कंटेनर में फिल किया हुआ है, सो यू शुड नो द हाइट ऑफ द लिक्विड अप टू विच इट इज फिल्ड, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड यू कैन कैलकुलेट द प्रेशर, ठीक है। तो आप उसका प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, प्रेशर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि नेल्स का जो फ्लैट टॉप होता है उस पर हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, थ्रस्ट अप्लाई करते हैं। जब हम उस पर थ्रस्ट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर बन जाता है प्रेशर। यही प्रेशर ट्रांसफर हो जाता है इस जगह पे जहाँ पे एरिया बहुत ही कम है, तो सेम प्रेशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बन जाता है। एंड अब क्या होगा, ये अंदर चले जाएगी किसी भी सरफेस के, राइट। एंड दैट इज द रीजन कि नेल्स का जो टॉप होता है वो तो काफ़ी वाइड होता है, बट उनका जो बॉटम होता है वो एक निडल, मतलब यू कैन से वेरी मच पॉइंटेड हो जाता है, राइट। तो इट कैन हेल्प अस। 7 निडल्स होते हैं, उनके भी पॉइंटेड टिप्स होते हैं। दिस इज द मेन रीजन, ताकि वो किसी भी क्लोथ में से एंटर कर सके, राइट। कटिंग आइटम जैसे कि नाइफ्स एंड ब्लेड्स हैव शार्प एज, सो दैट फ्रूट्स बहुत अच्छे से कट हो जाए, क्लीनली कट हो जाए, राइट, और हमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़े। सो वी आर गोइंग टू डिक्रीज आर एफर्ट्स, यू कैन से डिक्रीज आर एफर्ट्स डेफिनेटली बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड बाय डिक्रीजिंग द एरिया। What we have done, एरिया डिक्रीज कर दिया ना, देखिए एरिया डिक्रीज कर दिया है, सो इन दैट केसेस प्रेशर विल बी द मोर, और हमारे एफर्ट्स उससे कम हो जाएंगे, राइट। सो काफ़ी यूज़ है यहाँ पर प्रेशर का, ठीक है। रिड्यूस करने में भी काफ़ी जो है यूज़ कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको प्रेशर रिड्यूस करना, ताकि ये जो ट्रैक्टर्स के टायर होते हैं ये किसी मडी फील्ड में धंस ना जाए, राइट। तो अगर ऐसा पॉसिबल होता है, सो व्हाट यू कैन डू इज टू इंक्रीज द एरिया। अगर आप इंक्रीज करेंगे तो वेट जो है उसका वो उतना ज़्यादा नहीं होगा, वो उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई कर पाएगा, एंड ड्यू टू विच इट विल नॉट गो इन टू दी मड, राइट। सो इट कैन हेल्प अस दैट। कैमल के फूड सैंड में वो बहुत अच्छे से चल पाते हैं, द रीजन दे हैव वाइड फूड्स, राइट, एंड हमारे पास इतने वाइड नहीं होते। सो जब भी हम सैंड के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं हमारा पाँव अंदर चला जाता है सैंड के, right, because the area is less and that's why the pressure become more, that is the reason, ठीक है। हमारे जो बैग्स होते हैं, हैंगिंग बैग्स, if they have the wider strips, अगर वो wider strips होंगे तो आपको सेम वेट में ज़्यादा प्रेशर फील नहीं होगा, आपके कंधे थोड़े रिलैक्स होंगे, इसमें ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगने वाला है। बट अगर वो बहुत पतले होते हैं तो आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा फील होगा, एंड दैट इज़ वाई यू विल लाइक इन द पेन। सो मेक श्योर दैट योर बैग्स हैव अ वेरी वाइड स्ट्रिप्स, राइट। अभी देखिए, जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से, जिन पे लिक्विड प्रेशर जो है वो डिपेंड नहीं करता। फर्स्ट इज द फ्लूइड प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर। कैसा भी शेप हो, कैसा भी साइज हो, डिपेंड नहीं करता उस पर फ्लूइड प्रेशर, राइट, सिर्फ डिपेंड करता है उसका हाइट पे। फ्लूइड प्रेशर इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। कितना ही बड़ा एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। देखिए, कोई भी शेप हो, कोई भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन सभी में प्रेशर वुड बी द सेम एट द बेस। फ्लूइड प्रेशर इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन, तो बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो इट इज नॉट इवन डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में सेम प्रेशर है, ऑलराइट। सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स यू शुड रिमेंबर अबाउट इट, ठीक है। तो अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में जा रहे हैं, ऑलराइट। So this is the next lecture, that is the buoyancy and the buoyant force we have studied in that lecture. So let's get started. Alright, हमें कुछ देखने थे important point जो कि हमने पिछले वाले में नहीं देखे थे। The liquid at rest exerts equal pressure in all direction at a point inside the liquid. अगर कोई liquid रुका हुआ है तो एक point पे
सभी डायरेक्शन से जो प्रेशर आ रहा है दैट वुड बी सेम, ठीक है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होता, ठीक है। लिक्विड एट रेस्ट exerts equal pressure at all those points which are one level inside the liquid. एक लेवल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पे सेम प्रेशर होने वाला है, बिकॉज हाइट वुड बी द सेम ऑफ दैट पॉइंट्स, राइट। Liquid pressure is independent of the shape of the liquid surface but depends upon the height of the liquid column. शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करते बल्कि वो डिपेंड करते हैं हाइट पे. वी हैव सीन द फॉर्मूला H rho G, right? That is why. Total pressure at the depth H below the liquid surface कितना होगा? P naught plus H rho G. तो देखिए ये H rho G तो है लिक्विड का प्रेशर, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिराइव किया है फॉर्मूला. This P naught is actually the atmospheric pressure on the surface of the liquid. So basically इन दोनों को ऐड कर लेंगे अगर हम, तब हम टोटल प्रेशर बता पाएंगे. ठीक है. Pressure is a scalar quantity. Mean pressure on the walls of the beaker containing liquid up to height H is H rho G by 2. अगर हम बाउंड्रीज पे देखने वाले हैं, ठीक है. अगर हम मिडल में देख रहे हैं, पूरे उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, बेस की बात कर रहे हैं, तो दैट वुड बी H rho G. बट अगर हम क्या कर रहे हैं, बाउंड्रीज पे देख रहे हैं, तो दैट इज H rho G by 2. दैट इज हाफ ऑफ द प्रेशर, राइट. Thrust exerted by liquid on the walls of the vessel in contact with liquid is normal to the surface of the vessel. So basically thrust should be the perpendicular force on the walls, right? So that would be perpendicular also. अब हम देखते हैं बायोएनसी. बायोएनसी का मतलब क्या हुआ, किसी भी लिक्विड की कोई टेंडेंसी जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, किसी भी यू कैन से कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा सकता है, थ्रस्ट लगा सकता है, ठीक है. दैट इज द मेन थिंग और इसी को ही हम बायोएनसी कहते हैं. दिस टेंडेंसी इज एक्चुअली द बायोएनसी. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड, द लिक्विड एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स ऑन इट एंड दिस टेंडेंसी, ठीक है, दैट इज नोन एज दी बायोएनसी. तो देखिए जब आप किसी कॉर्क को ऐसे अंदर दबाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज कॉर्क क्या है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, राइट. तो बेसिकली ये हमेशा फ्लोट करता है पानी पे. हमने जब इसे अंदर दबा के रखा तब तक तो ठीक था, ये पानी के अंदर था. जैसे ही हम इसे हटा देते हैं कॉर्क ऊपर आ जाता है. सो हु सेंड दिस कॉर्क इन द अपवर्ड डायरेक्शन? द प्रेशर अप्लाइड बाय द लिक्विड, राइट. सो बेसिकली बायोएंट फोर्स वहां पर होता है. फोर्स जिसे हम बायोएंट फोर्स बोलते हैं, ये हर एक लिक्विड अप्लाई करता है और ये ऑब्जेक्ट को ऊपर धकेलने की कोशिश करता है, ठीक है. सो एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने इसे देखा, राइट. तो हमें ये पता चला जैसे कि कोई फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कमिंग अपवर्ड्स अगेन एंड अगेन, राइट. दिस इज एक्चुअली द बायोएनसी. इवन आपको पता है, आप अगर किसी लिक्विड के अंदर कोई पत्थर उठाने की कोशिश करोगे, कोई भारी सा पत्थर, यू आर एबल टू लिफ्ट इट, बट सेम भारी से पत्थर को अगर तुम एयर में उठाने की कोशिश करोगे, इट वुड बी लाइक मोर हैवी. सो बेसिकली पानी के अंदर फिर किसने हेल्प की आपकी, जिससे की वजह से आपको बहुत ही लाइट लगा, एंड दैट इज द बायोएनसी फोर्स. बायोएनसी फोर्स खुद इस पत्थर को ऊपर उठाना चाहती है एंड यू आर ऑल्सो डूइंग इट. सो आपका एफर्ट्स कम हो गए एंड पानी ने आपकी हेल्प कर दी, लिक्विड ने आपकी हेल्प कर दी. दैट इज द बायोएंट फोर्स जो कि हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. इट कैन ऑल्सो हेल्प यू. जैसे कि जब कभी हम कुएं में से पानी निकालते हैं, जब तक पानी की बाल्टी कुएं के अंदर है, पानी के लेवल के अंदर है, तब तक आप उसे इजीली ऊपर उठा पाएंगे. बट जैसे ही वो एयर में आ जाती है, आपको थोड़ा हैवी लगने लगता है. द रीजन इज बायोएनसी का फोर्स सिर्फ पानी के अंदर ही होता है, राइट. दैट इज वाई जब तक वो पूरी बाल्टी पानी के अंदर थी तब तक तो ठीक था, वो आपकी हेल्प कर रहा था, बायोएंट फोर्स आपका हेल्प कर रहा था उसको ऊपर उठाने में. जैसे ही वो एयर में आती है तब बायोएंट फोर्स आपकी हेल्प नहीं करता, राइट. तब वो आपको हैवी लगने लगती है, राइट. तो देखिए, द टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट इज कॉल्ड बायोएनसी, ठीक है. इवन द गैसेस एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ बायोएनसी. सो बेसिकली ये टेंडेंसी की कोई भी लिक्विड किसी ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड फोर्स लगा सके, दैट टेंडेंसी इज नोन एज द बायोएनसी, ठीक है. और उसी फोर्स को व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स. दिस अपवर्ड फोर्स इज द बायोएंट फोर्स. सो बेसिकली टेंडेंसी तो हुई, क्या हुई, बायोएनसी, एंड द फोर्स इज नोन एज द बायोएंट फोर्स, ठीक है. thus the upward force acting on an object immersed in a liquid is called the बायोएंट फोर्स. जो पानी के अंदर जो फोर्स उसको बार बार किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करता है, दैट फोर्स इज द बायोएंट फोर्स, ठीक है. चलिए देखते हैं बायोएंट फोर्स एंड अप थ्रस्ट.
अब देखिए, अप थ्रस्ट, बायो एंड फोर्स दोनों सेम टू सेम है। क्यों? क्योंकि जो थ्रस्ट पानी लगाता है वो हमेशा अपवर्ड लगाता है, दैट इज व्हाई इट इज अप थ्रस्ट, राइट। यू कैन ऑल्सो राइट दैट द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज ऑल्सो नोन एज द अप थ्रस्ट, ठीक है। तो दूसरे वर्ड में इसी का सेम टू सेम नाम है, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला, हाउ यू कैन गेट दैट। फॉर्मूला के लिए आप यू कैन से अप थ्रस्ट या फिर बायो एंड फोर्स इज एक्चुअली इक्वल टू द लॉस ऑफ द वेट। एयर में किसी बॉडी का जो वेट है, ठीक है, एयर के अंदर जो भी वेट है उसका, पानी के अंदर उसका वेट कम हो जाता है, ठीक है। रीजन इज देयर हैज टू बी सम लॉस ऑफ द वेट, कम हो गया ना कुछ लॉस हो गया। जितना लॉस हुआ होता है दैट इज इक्वल टू द बायो एंड फोर्स, क्योंकि बायो एंड फोर्स जितना फोर्स लगा रही है दैट उतना ही लॉस तुम्हें फील होगा, दैट इज व्हाई इट इज सो मच इक्वल टू इट। ऑलराइट, अब देखिए कुछ इसके एग्जाम्पल, जो मैंने आपको पानी के एग्जाम्पल दिए थे, कुएं की बाल्टी, राइट। अब देखिए कॉज ऑफ द बायो एंड फोर्स। सो बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखें, मैथमेटिकली देखने की कोशिश करें, सो यहाँ पर लेट्स सी हमने क्या किया, एक पूरे ब्लॉक को पानी के अंदर डुबो दिया, ठीक है। ये जो ब्लॉक है जो पानी के अंदर है, पानी चारों तरफ से क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, डेफिनेट सी बात है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह से फोर्स लगाएगा पानी, दैट वुड बी द परपेंडिकुलर थ्रस्ट, राइट। सो देखिए फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, अब एक्ट उस ब्लॉक पे, जो ये ब्लॉक पानी के अंदर है उस पे जो कितने कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली देखिए, ऊपर से फोर्स एक्ट होगा परपेंडिकुलर, नीचे से फोर्स एक्ट होगा परपेंडिकुलर, साइड से, फ्रॉम लेफ्ट फ्रॉम राइट, सब जगह से यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। सो द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक आर, ठीक है, फोर्स एक्सर्ट्स ऑन द साइड्स ऑफ द ब्लॉक एज वेल एज ऑन द टॉप एंड द बॉटम, सारे डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब देखिए रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स हम लोग देखेंगे, बट आप ये देखिए जितना फोर्स फ्रॉम द राइट डायरेक्शन लग रहा है एंड जितना फोर्स फ्रॉम द लेफ्ट डायरेक्शन लग रहा है, वो है एक्चुअली आपस में एक दूसरे की इक्वल एंड ऑपोजिट है, राइट। दैट इज व्हाई आपको यहाँ पे पता चलेगा दैट यहाँ वाला फोर्स एंड वहाँ वाला फोर्स विल गेट कैंसिल्ड, राइट, इक्वल एंड ऑपोजिट होने के चक्कर में। The sideways force is exerted by the water on the block being equal and opposite cancel out। अब देखिए साइड के फोर्सेस कैंसिल आउट हो चुके हैं, दो फोर्सेस बचे हैं, ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स, दैट इज ओनली, राइट। अब यहाँ पे क्योंकि साइड के फोर्स है नहीं, तो ऑब्जेक्ट साइड में तो जा ही नहीं सकता, बिकॉज नेट रिजल्टेंट फोर्स साइड के जीरो हो गया है, राइट। अब बॉडी सिर्फ ऊपर और नीचे ही जा सकती है। तो देखिए अब यहाँ पे क्योंकि सिर्फ दो फोर्सेस हैं, सिर्फ ऊपर का और नीचे का। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है, हम लोग ये बात जानते हैं, अकॉर्डिंग टू डेप्थ जितना ज्यादा नीचे जाएंगे, ठीक है, उतना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा, ड्यू टू विच देयर वुड बी मोर फोर्स, राइट। तो आप देख सकते हैं अगर ऊपर वाली सरफेस की बात करते हैं तो इसके ऊपर कम फोर्स है, नीचे वाली सरफेस की बात करते हैं तो इसके ऊपर ज्यादा फोर्स है, राइट, दैट इज द मेन थिंग। एंड क्योंकि कम फोर्स ऊपर की तरफ से लग रहा है, नीचे से ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो बॉडी ऊपर की तरफ जाती है, right, and that is the reason of the bio and force, that is the cause of the bio and force actually, क्योंकि ऊपर का जो फोर्स है वो कम हो जाता है, ड्यू टू विच नीचे का फोर्स ज्यादा हो जाता है, एंड इट गोज अप इनटू द एयर, क्योंकि हमें ये रीजन पता है जितना ज्यादा हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं उतना तो ज्यादा ही प्रेशर इंक्रीज होते जाता है, राइट। अब प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो डेफिनेट सी बात है फोर्स वुड इंक्रीज, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा, ठीक है, एंड दैट इज वाई हमको ये पता चला कि ये जो इसका बॉटम है इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर अप्लाई हो रहा है और ए पर कम प्रेशर अप्लाई हो रहा है, दैट इज वाई अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो देयर वुड बी रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स, एंड दैट इज वाई यहाँ पर बायो एंड फोर्स ज्यादा वर्क कर पाता है और बॉडी को ऊपर धकेलने की कोशिश करता है, ठीक है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं दैट इज द कॉज ऑफ द बायो एंड फोर्स, एंड इट विल फील लाइटर व्हेनेवर इट इज लाइक गोइंग अपवर्ड्स, राइट, क्योंकि नीचे का फोर्स हमें ज्यादा मिल रहा है ना, बायो एंड फोर्स विल बी ग्रेटर देन द अपवर्ड फोर्स। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो बायो एंड फोर्स को अफेक्ट करते हैं, जिसमें से कि पहला, साइज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्स्ड इन द फ्लूइड। जितना बॉडी आपने बॉडी पानी के अंदर इमर्स किया हुआ है या जितना पानी के अंदर है उसका वॉल्यूम अफेक्ट करता है, उस वॉल्यूम पे डिपेंड करता है एक्चुअली, ठीक है। तो जितना ज्यादा वॉल्यूम पानी के अंदर होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पर बायो एंड फोर्स भी होगा, ठीक है। सो द बायो एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्स्ड इन द वाटर। जितना वॉल्यूम अंदर इमर्स्ड है उतना ही ज्यादा बायो एंड फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है, इट इज लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
नेक्स्ट आप देखिए डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इन विच द बॉडी इज इमर्स्ड, जितनी ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा बायोवेंट फोर्स। तो जिस लिक्विड के अंदर हमने ऑब्जेक्ट को इमर्स किया है उस लिक्विड का कितना ज्यादा डेंसिटी है उस पर भी डिपेंड करता है बायोवेंट फोर्स। थर्ड देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द प्लेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है उस पर भी डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। फोर देखिए टेम्परेचर, यहाँ पे क्या है डिक्रीज हो जाता है, जितना ज्यादा आप लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना ही ज्यादा बायोवेंसी फोर्स जो है, बायोवेंट फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, इट इज लाइक इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब देखिए an object whose weight that is downward gravitational force is greater than the upthrust of the liquid, जिसका डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा होगा अपवर्ड फोर्स से, तो इसका मतलब क्या होगा, बॉडी विल सिंक डेफिनेटली, राइट, दिस इज द पॉसिबल, ठीक है, if the density of object is more than the density of the liquid, so basically it does happen, right। वहीं पर क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका वेट कम है और बायोवेंसी फोर्स ज्यादा लग रहा है, ऊपर से वेट कम लग रहा है, तो मतलब बायोवेंसी फोर्स ऊपर लगेगा तो बॉडी विल फ्लोट, द रीजन इज बॉडी विल फ्लोट, दिस इज पॉसिबल इफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अगर ऐसा हो जाता है देन इट इज पॉसिबल। सो बेसिकली इसी को ही हम लॉ ऑफ फ्लोटेशन भी बोलते हैं, आई विल बी गेटिंग इट दैट टू अहेड, ठीक है। देन वी डिड सम क्वेश्चंस, ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो यहाँ पर जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो भी हम लोगों ने स्टडी किया था। सो व्हाट डज इट से, इसमें ये क्या कहता है, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड पार्शियली और कंप्लीटली इन अ फ्लूइड, जब किसी भी बॉडी को आप आधा या पूरा, पार्शियली और कंप्लीटली अगर आप किसी बॉडी को पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर इमर्स करते हैं, it experiences an upthrust or buoyant force which is equal to the weight of the fluid displaced by the body, that is the most important thing। ये बात हमें पता है कि भाई जब जब भी कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर इमर्ज होती है उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट लगता है, उसके ऊपर एक बायोवेंट फोर्स लगता है, ये बात हमें पता है, बट कितना लगता है, कितना, जितना कि जो बॉडी है उस बॉडी की वजह से जितना फ्लूइड बाहर आ गया है, ठीक है, या फिर जितना फ्लूइड वहां से डिस्प्लेस हो गया है उस फ्लूइड के वेट के इक्वल होता है बायोवेंट फोर्स, राइट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नो अबाउट इट, ऑलराइट। इसका प्रूफ भी हम लोगों ने देखा था, राइट, हम लोगों ने प्रूफ देखा था भाई, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए हमने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल बॉडी को लिया, ठीक है, उसको पानी के अंदर इमर्स कर दिया, ठीक है, यू कैन से कि भाई रो डेंसिटी के लिक्विड में हमने इसे इमर्स कर दिया है। जो यहाँ पे देख सकते हो आप कि जो सिलेंड्रिकल बॉडी है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज ए एंड इसका हाइट है h। सो बेसिकली इसका जो बेस है वो अपवर्ड से, सरफेस ऑफ द वाटर जो है उससे h2 हाइट नीचे है और इसी बॉडी का जो टॉप है वो सरफेस से h1 हाइट नीचे है, ठीक है। ये बात हमें पता है कि जब ये बॉडी फुली इमर्स्ड होगी तो साइड वाले जो फोर्सेस होते हैं ड्यू टू लिक्विड वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा कौन, डाउनवर्ड फोर्स एंड द अपवर्ड फोर्स। सो F1 एंड F2 विल बी द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट राइट नाउ व्हेन इट इज इन द वाटर, राइट। सो देखिए प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द अपर सरफेसेस ऑफ द बॉडी, अगर हम अपर सरफेस की बात करें यहाँ से जो प्रेशर लग रहा है, सो दैट इज F1, हाइट इज h1, राइट। सो यू कैन सी प्रेशर कितना होगा, h1 रो g, ये प्रेशर 1 है, ठीक है, दैट इज ऑन द अपर सरफेस, अपर सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है दैट इज h1 रो g, ठीक है। अब देखिए फोर्स 1 कितना हो जाएगा, डाउनवर्ड थ्रस्ट ऑन द अपर सरफेस, डाउनवर्ड थ्रस्ट जो होगा वो फोर्स होगा, राइट, दैट वुड बी द फोर्स। सो इट वुड बी लाइक प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है, पानी जितना प्रेशर लगा रहा है इसके ऊपर, मतलब लिक्विड जितना प्रेशर लगा रहा है इस एरिया के ऊपर, दैट वुड बी द डाउनवर्ड थ्रस्ट, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए F1 इज इक्वल्स टू P1A एंड P1 का वैल्यू हमने जस्ट अभी देखा है h1 रो g a, तो वी डिड दी F1, वी कैलकुलेटेड दी F1, राइट। अब आप देखिए प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट द लोअर सरफेस ऑफ द बॉडी, अगर हम लोअर सरफेस की बात करें तो इसके ऊपर कितना लग रहा होगा, h2 रो g, h2 रो g, हम हाइट देखते हैं, राइट, तो दैट वुड बी h2 रो g, ठीक है। अगेन वी कैन कैलकुलेट द फोर्स, अपवर्ड थ्रस्ट जो होगा लोअर सरफेस पे, जो अपवर्ड थ्रस्ट होगा दैट वुड बी इक्वल टू दैट P2 to A, that is the pressure on that surface into the area of the surface, right?
तो H2 रो जी A। जब हम इन दोनों को देखेंगे तो देखिए हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो चुके हैं, तो यहाँ पे उनकी टेंशन नहीं लेनी है हमें, तो सिर्फ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड का टेंशन लेना है, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। अगर हमें रिजल्टेंट फोर्स चाहिए तो ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स आर द टू ओनली फोर्सेस, राइट। वी हैव कैलकुलेटेड दैट। सब्ट्रैक्ट करेंगे F2 माइनस F1, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वी आर गोइंग टू गेट दिस मच, H2 माइनस H1 रो जी A, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इस बॉडी का हाइट कितना है h, ठीक है, दैट इज H2 माइनस H1, दैट इज h, ठीक है। एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A हेयर। अगर मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो आई कैन से द वॉल्यूम इज H2 माइनस H1 इंटू A, राइट। अब इसका जो वॉल्यूम है तो हमने पूरे फॉर्मूले में से जो वॉल्यूम है उसको हटा दिया। अब H2 माइनस H1A इसकी जगह पे वॉल्यूम रख दिया। सो वी आर गोइंग टू गेट द नेट फोर्स एज वॉल्यूम, जो कि पानी के अंदर है, मतलब ओनली दैट वॉल्यूम विच इज इमर्स्ड इनसाइड द लिक्विड, रो जी, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर दी बायो एंड फोर्स, जो कि बॉडी पे एक्चुअली में लग रहा है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, कितना वॉल्यूम है बॉडी का पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। यू कैन कैलकुलेट दैट नाउ। तो इससे हमें ये पता चला कि भाई जो बायो एंड फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, जितना उस लिक्विड का, यू कैन से जो पूरा बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी की वजह से जितना ज़्यादा पानी का वेट बाहर आ गया, जो पानी डिस्प्लेस हुआ है उसका जितना वेट होगा दैट वुड बी इक्वल टू दैट, राइट। सो यू आर गोइंग टू गेट वॉल्यूम एंड रो। वॉल्यूम एंड रो इज मास, we all know that volume into density is mass and mass into g, that is of the water, right. So that means that is so true, Archimedes principle का, right, that is the truth, we can say that, ठीक है। आप इसको तो बिल्कुल देख लीजिए। ऑलराइट, सो देखिए उसके बाद हमने इसका प्रैक्टिकल भी किया था, एंड व्हाट वी डिड हियर, प्रैक्टिकल के टाइम में हम लोगों ने क्या किया था, मेनली हम लोगों ने एक छोटा सा यू कैन से सॉलिड लिया, ठीक है। ये जो सॉलिड लिया है इसको हमने स्प्रिंग बैलेंस से इसका वेट ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। इस बॉडी का वेट हमने इस वेइंग बैलेंस से, स्प्रिंग बैलेंस से कैलकुलेट कर लिया। एंड देन व्हाट वी डिड हियर, हम लोगों ने एक कंटेनर लिया है, इस कंटेनर में स्पेसिफिकली हम लोगों ने कुछ कंडीशंस रखी हैं, एंड व्हाट इज दैट, हमने केन लिया है जिसमें हल्का सा स्पाउट बाहर है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमने बिल्कुल इसको इस लेवल तक, स्पाउट के लेवल तक इसको फिल कर लिया है। अब अगर ये बॉडी अगर इसके अंदर जाती है, इस लिक्विड के अंदर जाती है, तो ये लिक्विड ऊपर आ जाएगा, हल्का सा ऊपर आ जाएगा, एंड ड्यू टू दैट कुछ पानी इस एम्प्टी कंटेनर में चला जाएगा, राइट। तो देखिए हमें इसका वेट W1 पता चल चुका है, W1 वेट ऑफ द बॉडी इन द एयर हमें पता चल चुका है। फिर हम इस बॉडी को कंप्लीटली इसके अंदर इमर्स करेंगे, लाइक दिस, इमर्स कर दिया है, एंड क्या किया इसके अंदर, अब देखिए वेट 2 हमने ले लिया था एम्प्टी कंटेनर का, इसका भी हमने पहले से वेट कर लिया इन दी एयर, ठीक है। अब देखिए जब हम बॉडी को इस लिक्विड के अंदर इमर्स करेंगे तो क्या होगा, पानी ऊपर आएगा, द लेवल विल राइज एंड दिस विल फ्रॉम द स्पाउट गोज इनटू दी सेकंड कंटेनर, पानी चला गया। अब इस पानी का जितना वेट होगा दैट वुड बी इक्वल टू द बायो एंड फोर्स और द लॉस इन द वेट इन दैट ऑब्जेक्ट, राइट। तो अब देखिए सेकंड, इसका W3 इज द वेट, वो वेट जब ये बॉडी लिक्विड के अंदर थी, ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा पानी बाहर आया इसका वेट इज द W4। सो इफ वी डू दैट, इफ वी सब्ट्रैक्ट दैट, तो हमें क्या मिल जाएगा, बायो एंड फोर्स मिल जाएगा, राइट। सो लेट्स डू दैट, ठीक है। हमें ये ऑलरेडी बात पता चल चुकी है कि भाई यहाँ पर जो हम लोगों ने इतने सारे वेट्स मेजर किए थे, तो देखिए बॉडी का जितना वेट होगा W3 वुड बी लेस देन W1, एयर में जितना वेट था उससे तो कम होगा बॉडी का वेट इन द वाटर, सो दैट वुड बी द लॉस ऑफ वेट यू आर गोइंग टू गेट, W1 माइनस W3, द लॉस ऑफ वेट ऑफ द बॉडी, राइट, एंड यू आर गोइंग टू गेट दिस वेट, मतलब W4 माइनस W2 इज गोइंग टू गेट द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। So you are going to get the same, and you going to calculate them, both the readings will be same, and that is why we can say that Archimedes principle का जो practical use है वो totally true है, right? So we can definitely say that, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जो upthrust लग रहा है, बायो एंड फोर्स लग रहा है, वो वेट ऑफ द वाटर जो डिस्प्लेस हुआ है उसके इक्वल है, ठीक है। दैट इज वाई वी कैन यू कैन से दैट इट इज सो मच ट्रू अबाउट दिस, राइट।
तो हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी यहाँ पे जो है वेरीफाई हो जाता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेंसिटी. वैसे तो सबको पता है मास अपॉन वॉल्यूम इज द डेंसिटी, राइट, एंड यू कैन से दैट डेंसिटी को रो से हम डिनोट करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम. यहाँ पर मेन थिंग क्या है कि जो इसकी एसआई यूनिट है वो केजी पर मीटर क्यूब होती है, सीजीएस यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, राइट. एंड यू कैन से दैट कि अगर हम वॉल्यूम को 1 मीटर क्यूब कर दें तो डेंसिटी वुड बी इक्वल टू द मास ऑफ द बॉडी, राइट. Alright, so now let's talk about the relative density or the specific gravity. रिलेटिव का मतलब आप खुद से जानते हैं कि किसी रिलेशन की बात कर रहे हैं. तो अगर हम क्या करें, किसी भी बॉडी की डेंसिटी पानी की डेंसिटी के बराबर अगर हम रिलेशन में देखें कि भाई कितना कंपैरिजन कितने टाइम्स, अगर ऐसा है रिलेशन में देखें, मतलब उस बॉडी का जो डेंसिटी है उसको वाटर की डेंसिटी के साथ कंपेयर करेंगे, देन वी आर गोइंग टू गेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बॉडी. ठीक है, सो रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस. ठीक है, प्योर नंबर नो यूनिट, बिकॉज डेंसिटी का यूनिट तो कैंसिल हो जाएगा, दैट इज व्हाई इट इज जस्ट अ नंबर, नो यूनिट्स, राइट. इसका फिजिकल मीनिंग बस यही है कि अगर जैसे आपने बोल दिया कि रिलेटिव डेंसिटी सिल्वर की है 10.5, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेंसिटी है सिल्वर की दैट इज 10.5 टाइम्स ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट. तो यू कैन गेट दैट, इस नंबर से आपको रिलेशन पता चल जाएगा कि भाई पानी के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा है या कितना कम है इसका डेंसिटी, दैट इज द रिलेटिव डेंसिटी. ठीक है, नाउ लेट्स सी द यूजेस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड द लॉ ऑफ रोटेशन, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर था. ठीक है, सो लेट्स सी दैट. देखो, रिलेटिव डेंसिटी जो है वो सॉलिड्स की, लिक्विड्स की मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग द आर्किमिडीज प्रिंसिपल. ठीक है, कैसे हम लोग कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करने पड़ेगा, हमें ये बात तो पहले से पता है कि भाई रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ वाटर. इस डेंसिटी के फॉर्मूले से हम वेट का रिलेशन निकालेंगे. कैसे, बिकॉज हमें ये बात पता है डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम. सब्सटेंस के लिए मैं लिख सकती हूँ, उसकी डेंसिटी के लिए लिख सकती हूँ मास ऑफ द सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस. इसी तरीके से डेंसिटी ऑफ वाटर के लिए मास ऑफ द वाटर, वॉल्यूम ऑफ द वाटर. अब ये जो वॉल्यूम ऑफ द वाटर है एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड है, अगर हम इन दोनों को सेम कर दे, फॉर द सेम वॉल्यूम अगर हम कर देते हैं, ठीक है, तब अगर हम कर देते हैं सेम, तो दैट वुड बी लाइक MSWM. यहाँ पे जो वॉल्यूम है दे विल गेट कैंसल्ड आउट, राइट. तो हमें क्या मिलेगा, मास ऑफ द सब्सटेंस, वॉल्यूम, मास ऑफ द वाटर, एंड अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दें तो वी आर गोइंग टू गेट द वेट ऑफ द सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस एंड वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ द वाटर. ठीक है, तो हमें ये चीज़ वेट का रिलेशन पता चल गया, मतलब डेंसिटी से हम वेट पर आ गए, राइट. अब देखिए बायो एंड फोर्स क्या होता है, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, मतलब कितना लॉस हो गया है बॉडी के वेट में. लॉस ऑफ वेट कैसे निकाल सकते हैं, लॉस ऑफ वेट हम तब निकाल सकते हैं जब हम बॉडी का जो भी सॉलिड है उसका अगर हम एयर में वेट मेजर करें और वाटर में डूबने के बाद उसका वेट मेजर करें, सो वी कैन गेट द लॉस ऑफ द वेट. ठीक है, सो देखिए वेट ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय लॉस इन वेट व्हेन फुल इमर्ज्ड इन वाटर. तो ये क्या होगा, वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर, जितना पानी बाहर गया उसका जो वेट है दैट इज लॉस इन वेट, इतना हो जाएगा. सो वी डिड द लॉस इन वेट. ठीक है, इसी की वजह से वी कैन से दैट कि मानो W1 by W2, ये हम लोगों ने देख लिया कि W1 है बॉडी का वेट इन द एयर, W2 है बॉडी का वेट इन द वाटर. अब लॉस इन वेट कितना होगा, एयर में जितना वेट था माइनस वाटर में जितना वेट था, माइनस कर दिया हम लोगों ने, वी आर गोइंग टू गेट लेस इन वाटर. इसी वजह से वी कैन राइट दैट वेट ऑफ द सॉलिड बॉडी इन एयर इज divided by the loss in weight in water. So you are going to get W1 divided by W1 minus W2. ये रिलेटिव डेंसिटी निकालने का मतलब हमारा बस इतना सा था कि हम लोग पानी का कंपैरिजन में डेंसिटी मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, राइट. दैट इज द मेन यूज है. इसी तरीके से हम लिक्विड के लिए भी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, बट लिक्विड के लिए हम क्या करेंगे, लिक्विड के लिए हम लोग मेनली क्या करेंगे, एक बॉडी लेंगे, ठीक है, उसका एयर में वेट मेजर करेंगे, फिर वाटर में उसको पूरी तरह इमर्स करने के बाद उसका वेट मेजर करेंगे, देन उसी बॉडी को उस लिक्विड में वेट मेजर करेंगे जिस लिक्विड का रिलेशन हमें इसमें निकालना है, रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है. ठीक है, इन सभी वैल्यूज को हम लोग पुट डाउन कर लेंगे. ठीक है, देखिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. सो इफ यू नो दीज थिंग्स, वेट ऑफ द सॉलिड इन एयर,
वेट ऑफ द सॉलिड इन वाटर, वेट ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। अगर ये तीनों चीजें आपको पता है देन यू कैन कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड and weight in air minus weight in water. So if you do that, if you calculate this, you are going to get the relative density of the liquid, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने solid का use किया है but हम relative density liquid का calculate कर रहे हैं, ठीक है। So that can be done. अब देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है उसको हम डेफिनेटली कई सारे मैकेनिकल और इंजीनियरिंग डिवाइसेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि शिप्स और सबमरीन्स, कितना प्रेशर लगता है, कितना वेट होगा या फिर कितना एक्सट्रैक्ट करेंगे, लाइक ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएगी, कब कौन फ्लोट करेगा कौन सिंक होगा, राइट, दैट वुड बी ऑल्सो कैन कैलकुलेटेड। हाइड्रोमीटर्स को हम बनाने में यूज़ कर सकते हैं जिनसे हम लिक्विड्स की डेंसिटी मेजर करते हैं। इवन हम लोग लैक्टोमीटर्स बना सकते हैं जिससे हम मिल्क की क्वालिटी उसको चेक कर सकते हैं, प्योरिटी देख सकते हैं कितना प्योर है कितना नहीं है, ठीक है। फिर देखिए इतने सारे सब्सटेंसेस हैं जिनकी डेंसिटी क्या होती है एयर में, एंड यू कैन से द रिलेटिव डेंसिटी इन कंपैरिजन टू द वाटर, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपली कुछ भी नहीं करना होता, हमें पता है डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो अगर आपको वाटर की डेंसिटी पता है तो आप रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उस बॉडी का यू कैन से द डेंसिटी, ठीक है, उसको 1000 से अगर हम डिवाइड कर देंगे सो वी आर गोइंग टू गेट द रिलेटिव डेंसिटी। यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस टेबल, ऑलराइट। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। सो बेसिकली ये जो लॉ ऑफ फ्लोटेशन है ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताता है। ये आपको बताता है कब एक बॉडी सिंक करती है, कब फ्लोट करती है और कब वो पूरी तरीके से इक्विलिब्रियम में इमर्ज हो जाती है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे मेन काम क्या है, एक तरीके से हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल को यूज़ कर रहे हैं बट एक तरीके से ये एक्सटेंशन भी है उसका। सो वी आर गोइंग टू गेट लाइक एक्सटेंड द आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड वी मेक द लॉ ऑफ फ्लोटेशन, ऑलराइट। सो यहाँ पे क्या होता है, जब कभी कोई बॉडी पार्शियली या फिर होली किसी फ्लूइड में डूब जाती है तो उसके ऊपर वेरियस फोर्सेस एक्ट होते हैं। दो फोर्सेस मेनली होते हैं, एक तो वेट, ठीक है, उस बॉडी का वेट, ठीक है, सेकंड अपवर्ड थ्रस्ट जो कि लिक्विड उस पर अप्लाई कर रहा होता है। सो अपवर्ड थ्रस्ट जिसे हम बी से बोल रहे हैं बायोएंट फोर्स, ठीक है, एक्टिंग ऑन द एट द सेंटर ऑफ द बायोएंसी एंड whose magnitude is equal to the weight of the liquid displaced. सेकेंड फोर्स जो उस बॉडी पे एक्ट कर रहा होता है दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी इटसेल्फ, राइट, विच एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट। अब इसके बेसिस पे, इन दोनों के बेसिस पे वी आर गोइंग टू गेट कब एक बॉडी सिंक होती है और कब फ्लोट करती है। सो बेसिकली देखिए जब उसका बॉडी का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है फ्रॉम द बायोएंट फोर्स, अगर बॉडी का वेट है वो बायोएंट फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा सो यू आर गोइंग टू गेट लाइक बॉडी जो है सिंक हो जाएगी, ठीक है। वहीं पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द बायोएंट फोर्स तो वो इमर्ज हो जाएगी एंड इट लाइक इक्विलिब्रियम में रहेगी, ठीक है। थर्ड कंडीशन इज लाइक दिस, तो जब बॉडी का जो वेट है दैट इज सो मच लेस देन द बायोएंट फोर्स तो वो फ्लोट होती है, जैसे कि वुड, ठीक है। तो वुड का जो वेट है वो काफ़ी लेस होता है, दैट इज वाई इट वाज ऑलवेज फ्लोट बिकॉज बायोएंट फोर्स इज ग्रेटर दैन द weight of the wood, right, that is why it floats. So basically you can check that out, तुम लोग अपने आप पता कर सकते हो now कि कौन सी बॉडी कब फ्लोट करेगी और कब नहीं करेगी, ठीक है। अब देखिए कुछ स्पेशल फीचर्स यहाँ पे फ्लोटिंग बॉडी के लिए मेनली बोला जाता है, क्यों, क्योंकि वो फ्लोट कर रही है, राइट, दैट इज वाई उसका पूरा का पूरा जो वेट है वो बायोएंट फोर्स से कैंसिल आउट हो चुका है, राइट, पूरा का पूरा वेट उसका बायोएंट फोर्स से कैंसिल आउट हो चुका है, दैट इज व्हाई इट इज अ वेटलेस बॉडी, इट इज कंसीडर्ड एज अ वेटलेस बॉडी, ठीक है। सो क्योंकि दोनों का जो वेट है वो इक्वल हो चुका है, मतलब जो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉडी का है, ठीक है, और वही वेट बायोएंट फोर्स क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है। सो द टोटल फोर्स यू कैन से इज 0, ठीक है, टोटल फोर्स अप एंड डाउन अगर हम बोले तो, so that is why there is complete loss of the weight and that is why the body is feeling weightless, ठीक है, alright, that is the main thing। फिर आप देख सकते हैं जो डेंसिटी होती है किसी भी लिक्विड की एंड द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड, अगर आप इन दोनों का रिलेशन करना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, ρ1 इज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, ठीक है, और V1 इज द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड, ठीक है। अगर हम ρ2 मान लेते हैं लिक्विड का और वॉल्यूम जो है जितना पोर्शन सॉलिड का
जितना वॉल्यूम सॉलिड का उस लिक्विड के अंदर इमर्स्ड है, दैट इज V2 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये बात जानते हैं कि भाई वेट ऑफ द फ्लोटिंग सॉलिड है दैट शुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, राइट। जितना लिक्विड बाहर गया है, डिस्प्लेस हो गया है, उतना ही वेट होना चाहिए फ्लोटिंग का, ठीक है, फ्लोटिंग सॉलिड का। तो वी कैन सी दैट ρ1 V1 ρ1 G इक्वल टू V2 ρ2 G बाय यूजिंग दिस वेट ऑफ द फ्लोटिंग सॉलिड। तो वेट अगर मैं निकालूंगी मतलब मास, राइट, मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है। तो मास इस फ्लोटिंग सॉलिड का कैसे होगा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम, दैट इज V1 इंटू ρ1। इसी तरीके से आप वेट ऑफ द लिक्विड अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो जितना वॉल्यूम बाहर गया एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज गोइंग टू गेट यू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। दोनों को इक्वल कर दिया है, G से G कैंसिल आउट हो गया है, तो यू कैन गेट द रिलेशन ρ1 डिवाइडेड बाय ρ2, दैट इज ρ1 इज द weight, you can say density of the solid and ρ2 is the density of the liquid, so that is V2 by V1। तो यहाँ पर आप ये बात देख सकते हैं, अगर आपको रिलेशन निकालना डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, सो इस दैट केस में बॉडी का वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम कितना इमर्स्ड है, दैट पोर्शन, द इमर्स्ड पोर्शन ऑफ द वॉल्यूम इज इक्वल टू दैट रिलेशन। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, उसका टोटल यू कैन से पोर्शन निकाल लेते हैं, देन इट इज टोटली इक्वल टू दैट। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड दैट वुड बी द लास्ट आई थिंक, राइट। जब कभी भी कोई आइस ब्लॉक पानी में फ्लोट करती है किसी भी वेसल में, ठीक है, तब लेवल ऑफ द वाटर जो है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। पूरी आइस अगर पूरी तरीके से मेल्ट हो जाए तो भी नहीं, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको किसी लिक्विड में रख दें, आइस ब्लॉक को किसी लिक्विड में रख देते हैं, ठीक है, और आइस कंप्लीटली मेल्ट हो जाती है, तो जो लेवल बढ़ेगा या फिर जो लेवल डिक्रीज होगा वो डिपेंड करता है, ठीक है। इट डिपेंड्स एक्चुअली ऑन दी केसेस। पहला केस, अगर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द वाटर, ठीक है, लिक्विड की डेंसिटी अगर ज़्यादा हो जाती है लिक्विड वाटर की डेंसिटी से, सो यू कैन से कि पानी का जो लेवल प्लस दैट लिक्विड विल राइज। क्यों? क्योंकि डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा हो गई है। अगर दोनों की डेंसिटी कम रहती है, लिक्विड की डेंसिटी कम रहती है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, तो पूरी आइस मेल्ट होने के बाद जो लेवल है वो नीचे गिर जाता है, दोनों का अगर हम माने तो, ठीक है। एंड अगर दोनों का जो डेंसिटी है वो इक्वल होती है तो फिर देयर विल बी नो राइज, देयर विल बी नो सिंकिंग एंड वाटर लेवल और उस लिक्विड का लेवल वुड बी द सेम, ठीक है। सो दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यू शुड नो अबाउट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड द वाटर, ठीक है। इसी के साथ हम लोग अपना पूरा चैप्टर रिवाइज कर चुके हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू एंड आवर लेक्चर। So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.